Today we are going to study about the arithmetic geometric progressions. ठीक है. So what is before studying about arithmetic and geometric progression, we have to study about the sequence and series, right? So what is a sequence and what is a series? A sequence is a list of numbers called terms which are arranged in a definite order. तो सीक्वेंस हमारी क्या होती है, एक लिस्ट होती है नंबर्स की, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं सीक्वेंस का, और जो अरेंज होते हैं कहाँ, किसमें, एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज होते हैं. दैट इज ईच टर्म इन द लिस्ट फॉलोज अनदर टर्म अकॉर्डिंग टू सम रूल. हर एक टर्म जो भी लिस्ट में होता है वो फॉलो करता है क्या, एक रूल को फॉलो करता है, राइट. और जो दूसरा टर्म होता है उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, वो रूल को फॉलो करते 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 हमें नेक्स्ट टर्म मिलता जाता है, राइट. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर वी आर हैविंग एन एग्जाम्पल 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन. दिस इज अ सीक्वेंस बिकॉज इसमें अगर आप यू विल फाइंड दैट each what are the numbers, what are these numbers, you will find that these all are the reciprocals of natural numbers. This is 1/1 is 1, 1/2, 1/3, 1/4. So what is the rule? Rule is just put the natural number 1 by 1 and find its reciprocal. So we get 1, 1/2, 1/3, 1/4 and so on. Therefore it is a sequence, right. In general, what is the actual definition of sequence? A sequence is a function whose domain is the set of positive integers. What do you mean by domain? Domain क्या होता है हमारा? अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है जिसपे आप क्या करते हो, पॉजिटिव इंटीजर्स की वैल्यू पुट कर सकते हो, तो जो जो पॉजिटिव इंटीजर्स आप उसमें पुट कर सकते हो उसका जो सेट होता है दैट इज कॉल्ड डोमेन. एंड रेंज इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स. इन व्हाट इज रेंज? रेंज मीन्स जब आप पॉजिटिव इंटीजर्स उसमें पुट करते हो तो जो आपको वैल्यूज मिलती हैं दैट इज कॉल्ड रेंज. तो जो रेंज होती है दैट शुड बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स. तो इफ देयर इज अ फंक्शन whose domain is the set of positive integers and whose range is the set of real numbers, then that particular function is called a sequence, right. So a sequence is now represented as sequence को हम represent कैसे करते हैं, a1, a2, a3, and so on, an, and so on, where a1 is the first term, a2 is the second term, a3 is the third term and so on. इसी तरीके से an is the last term and so on. ऐसे ही हमारे टर्म्स इसमें सीक्वेंस में चलते रहते हैं. और हम अगर उसको विद अ सिंगल लेटर और सिंगल वर्ड और हम उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं सीक्वेंस को, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सीक्वेंस का जो भी nth टर्म होता है दैट इज an, हम उसको इस ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज कर देते हैं. दिस इज नॉट पैरेंथेसिस, दिस इज नॉट कर्ली ब्रेसेस, दिस इज नॉट स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज लाइक दिस. You can say this is the symbol of less than and this is the symbol of greater than, but this is not the symbols of less than or greater than, it's look like, right. So this is the representation of a sequence. Now what is the series? The indicated sum of the terms of the sequence is called an infinite series. यानी अगर हम sequence के जो terms हैं उनका sum कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, series मिल जाती है. तो let us suppose we are having a sequence, a1, a2, a3 and so on, an and so on. So then what will be the infinite series? The infinite series will be a1 plus a2 plus a3 plus and so on, an plus and so on. यानी हमने क्या करा, हमने सारे सीक्वेंस के टर्म्स का सम कर दिया तो हमें इनफाइनाइट सीरीज मिल गई. If we want to write this expression in terms of summation, then what will we write? Summation I 1 to infinity an, because जो हमारी सीरीज है वो इनफाइनाइट तक है, 1, 2, 3 से लेकर इनफाइनाइट तक, इसलिए हम लिखते हैं समीशन 1 to infinity an. Now we are taking an example of sequence and series. Suppose we are having a sequence 1/1 plus n, right. ये sequence क्यों है, because ये हमारे इस bracket के अंदर enclosed है. Find the first 4 terms and their sum. हमें इस sequence के starting के 4 term calculate करने हैं और फिर उनका sum निकालना है. तो you can easily see that यहाँ पर जो general term है हमारा that is 1/n plus 1. अब सीक्वेंस के फर्स्ट 4 टर्म्स कैलकुलेट करने के लिए आप 1 by 1 n की वैल्यू पुट करोगे, 1, 2, 3, 4. तो जब हम इसमें n की जगह पे 1 रखेंगे, when we put 1 on place of n, what we will get, 1/2. If we put 2, we will get 1/3. If we put 3, we will get 1/4. And if we put 4, then what we will get, we will get 1/5. So these are first 4 terms of the sequence 1/1 plus n, right. Now we want to find their sum. So we want to find the sum of 4 terms. That's why we write S for sum, and 4 is means 4 terms का sum है ये, right. So what will be the sum? Add all the
terms, 1/2 plus 1/3 plus 1/4 plus 1/4. What will be the sum of these terms? Just take the LCM and simplify, we will get 1.283. So this is the sum of all these 4 terms, right? Now we will talk about the arithmetic progression, means our main topic, arithmetic progression. Arithmetic progression is represented by AP. हम इसको AP से represent करते हैं, यानी arithmetic progression. तो what is the arithmetic progression? An arithmetic progression is a sequence of terms in which each term after the first term is equal to the sum of preceding term and a constant, and that constant is called common difference. Means arithmetic progression भी एक sequence है, इसीलिए हमने अभी sequence के बारे में पढ़ा था, जिसके जो टर्म्स होते हैं वो कैसे मिलते हैं. अगर हम पहले टर्म को छोड़ दें, आफ्टर द फर्स्ट टर्म, पहले टर्म को छोड़कर हर एक टर्म कैसे मिलता है, इज द सम ऑफ प्रीसीडिंग टर्म एंड द कांस्टेंट. तो हम क्या करते हैं, हम पिछले टर्म में अगर एक कांस्टेंट ऐड कर दें तो हमें अगला टर्म मिलता जाता है, मिलता जाता है, मिलता जाता है. वो कांस्टेंट वैल्यू फिक्स होती है, हर बार हमें वही प्लस करनी होती है, और हम उस कांस्टेंट वैल्यू को बोलते क्या है, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, राइट. और उस कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये डिफरेंस है, डी फॉर डिफरेंस, तो हम उस कॉमन डिफरेंस को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो डिफरेंस है उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट. यू कैन सी हियर वी आर टेकिंग एन एग्जांपल 1 3 5 7 9. तो यहां पर आप देखिए, अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म 1 है तो हर बार मैंने उसमें कुछ प्लस करा. 1 में 2 प्लस करा 3 हो गया, 3 में 2 प्लस करा 5 हो गया, 5 में 2 प्लस किया 7 मिल गया, 7 में 2 प्लस किया 9 मिल गया. इट मीन्स हर बार हम एक कॉमन वैल्यू या कॉन्स्टेंट वैल्यू 2 को ऐड कर रहे हैं, राइट. तो ये क्या हो गई, हमारी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गई, क्योंकि इसमें हर बार हम एक कॉमन वैल्यू ऐड करके नया टर्म निकाल लें, और यहां पर जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना हो गया, 2 हो गया. नाउ हियर वन मोर एग्जांपल 50 45 40 35. इसमें भी हर बार क्या हो रहा है, हर बार एक कॉमन टर्म हम माइनस कर रहे हैं, और वो कॉमन टर्म माइनस क्या कर रहे हैं, 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. यहाँ पर 50 माइनस 5 इज 45, 40 माइनस 5 इज 40, 40 माइनस 5 इज 35 एंड सो ऑन. तो ये भी क्या है, हमारी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना है, -5 है. तो हर बार आप -5 को ऐड कर रहे हो, या आप कह सकते हो 5 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिससे हमें क्या मिल रहा है, अगला टर्म मिलता जा रहा है. तो ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक. अगर हम जनरल टर्म्स में बात करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो जनरल टर्म्स में क्या होता है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन. जहां पर a क्या होता है, हमारा फर्स्ट टर्म कहलाता है, और हर बार हम क्या प्लस कर रहे हैं, d प्लस करते जा रहे हैं. तो d इज कॉल्ड दी कॉमन डिफरेंस. तो ये हमारे जनरल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, राइट. नाउ अब हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे वो होते हैं हमारे nth टर्म के बेसिस पर होते हैं. जनरल टर्म या nth टर्म हम जिसको बोलते हैं, द जनरल और द nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन बाय an. an का मतलब nth टर्म. a1 मींस फर्स्ट टर्म, a2 मींस सेकंड टर्म, a3 इज थर्ड. तो an इज द nth टर्म, और इसका फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट. तो दिस इज द nth टर्म, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब if we wish to calculate the nth term from the end, then it is given by L minus n minus 1d. अगर ये तो जो आपने nth टर्म निकाला, ये स्टार्टिंग से निकाला, पहला a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, a प्लस 3d, और जो nth टर्म होगा वो आएगा आपका an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. बट अगर आप बैक साइड से रिवर्स डायरेक्शन में आप nth टर्म निकालना चाहते हो, हमें लास्ट टर्म मालूम है, लास्ट से पहला, उससे पहला, उससे पहला, तब आप अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है L माइनस n माइनस 1d. जहां पर L क्या होता है हमारा, L इज दी लास्ट टर्म, और N होता है हमारे नंबर ऑफ टर्म्स, D होता है हमारा कॉमन डिफरेंस. तो तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर बैक साइड से अगर आपको nth टर्म निकालना है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, राइट. नाउ वी आर टेकिंग एन एग्जांपल. सपोज वी हैव गिवन दैट वी हैव टू फाइंड द 15th टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. हमें 15वां टर्म कैलकुलेट करना है, हुज फर्स्ट टर्म इज 4 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3. क्योंकि हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म दिया 4, मींस a कितना हो गया हमारा 4, कॉमन डिफरेंस इज 3 मींस d इज 3, और हमें कौन सा टर्म निकालना है, 15वां. तो n कितना हो गया 15. तो अब हम 15th टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे. तो पहले हम जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, राइट. इसमें n की जगह पर 15 रख दो, a की जगह पर 4 रख दो, और d की जगह पर 3. तो क्या मिलेगा, a 15 इज इक्वल टू a की वैल्यू 4 हो गई, n की वैल्यू अगेन 15 माइनस 1, और d इज 3. जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 46. तो जिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म 4 और कॉमन डिफरेंस 3 होगा, उसका जो 15वां यानी कि 15th टर्म होगा, दैट विल बी 46. ओके, नाउ वी आर टेकिंग अनदर एग्जांपल. फाइंड द 11th टर्म ऑफ एपी. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 11वां टर्म हमें चाहिए, जबकि हमें सीरीज दी है 5 9 13 17 एंड सो ऑन.
ठीक है। तो आप इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखोगे तो फर्स्ट टर्म में वो क्या है 5 है, यानी कि ए हो गया हमारा 5। हर बार आप क्या प्लस कर रहे हो चेक करो, 5 + 4 = 9, 9 + 4 = 13, 13 + 4 = 17 एंड सो ऑन। तो डी हो गया हमारा 4। हमें कौन सा टर्म कैलकुलेट करना है 11th, मींस n इज 11। तो अगेन हमने nth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया, an = a + n - 1d। n की वैल्यू हमने 11 पुट कर दी, a की वैल्यू हमने 5 पुट कर दी, n की वैल्यू यहाँ भी 11 पुट कर दी और d की वैल्यू हमने कितनी पुट कर दी 4। जब हमने सिंप्लीफाई करा तो हमें क्या मिल गया 45। तो अगर हम इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 11वां टर्म देखेंगे तो वो सॉल्व करके कितना आएगा हमारे पास 45 आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम इसके क्वेश्चंस, जनरल टर्म के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज फाइंड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यहां पर हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालनी है पूरी की पूरी, हुज 5th टर्म इज 7 एंड 12th टर्म इज 42। तो ऐसी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसका 5th टर्म हमारे पास दिया हुआ है 7 और 12th टर्म दिया हुआ है हमें 42। तो 5th टर्म मींस a5 दिया हुआ है हमें 7 और 12th टर्म यानी a12 दिया हुआ है हमें 42, राइट। तो 5th टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a + 5 - 1d यानी कि a + 4d। तो a + 4d हो गया हमारा 7 और 12th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा a + 12 - 1d यानी a + 11d। तो a + 11d हो गया हमारा 42। ये हमने इक्वेशन 1 और 2 मान ली। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर किसकी वैल्यू निकाल लूंगा, a और d की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। तो मैंने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस किया तो a माइनस a तो 0 हो गया, 11d - 4d 7d और 42 - 7 इज 35। तो यहां से आपने d की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, कितनी 5 आ गई। अब ये d की वैल्यू उठाकर आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए तो क्या मिलेगा a + 4d यानी कि a + 4 इंटू डी की वैल्यू हो गई 5 = 7। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -13। अब d और a पता चल गया। अब इजीली हम अपनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। a से स्टार्ट करो और उसमें d प्लस करते जाओ। तो a हो गया हमारा -13, उसमें d यानी कि 5 प्लस करा तो क्या मिल गया -8, फिर इसमें 5 प्लस करा -3, फिर इसमें 5 प्लस करा +2, फिर 5 प्लस करा +7। इसी तरीके से आप 5 प्लस करते करते पूरी अर्थमेटिक सीरीज या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी निकाल सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म, यानी कि अगर 7वें टर्म को हम 7 टाइम्स यानी 7 से मल्टीप्लाई करते हैं ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू द 11 टाइम द 11th टर्म, और 11th टर्म को हम 11 से मल्टीप्लाई कर दें, उसका 11 टाइम्स कर दें मतलब, तो वो दोनों कैसे होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, राइट। तो शो दैट द 18th टर्म ऑफ एपी इज 0, हमें शो करना है कि जो 18वां टर्म होगा वो 0 होगा। अब हमें क्या दिया, हमें 7th टर्म दिया हुआ है, 7th टर्म का 7 टाइम्स करना है और 11th टर्म का 11 टाइम्स करना है। 7th टर्म होता क्या है a + 7 - 1d यानी a + 6d, और 11 टर्म क्या होगा a + 11 - 1d यानी a + 10d। अब एज पर द क्वेश्चन अगर हम 7th टर्म का 7 टाइम्स कर दें तो हमने a + 6d का 7 टाइम्स कर दिया, और 11th टर्म का 11 टाइम कर दें यानी कि a + 10d का हमने 11 टाइम्स कर दिया। तो वो दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है। हमने दोनों को इक्वेट करा दिया। अब आप दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करिए तो ये हो गया 7a + 7 × 6 = 42d, ये हो गया 11a + 110d। यहां से सिंप्लीफाई करा आपने तो हमें मिल गया 4a = -68d, वेयर a = which will give you a = -17d। हमें यहाँ पर a की वैल्यू मिल गई। तो a की वैल्यू जब हमें मिल गई तो अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू हम यूज करेंगे किसको कैलकुलेट करने में, 18th टर्म को कैलकुलेट करने में हम वैल्यू को यूज करेंगे। तो 18वें टर्म की वैल्यू क्या होती है, 18 टर्म का फॉर्मूला लगा तो a18 = a + 18 - 1d यानी a + 17d। यहां पर हमने d की वैल्यू रख दी कितनी, सॉरी a की वैल्यू हमने यहां पर पुट करी -17d। तो ये हो गया -17d और प्लस का 17d, टोटल क्या हो गया 0 हो गया, यानी 18 टर्म हमारा आ गया 0। और हमें यही प्रूफ करना था कि शो दैट द 18 टर्म ऑफ एपी इज 0, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने एक और क्वेश्चन यहां पर हम लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ये आपका एक तरीके से आप कह सकते हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एप्लीकेशन है रियल लाइफ के क्वेश्चंस में, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, एक एग्जांपल है, अ गेट रिसीव्स एट द शो ऑफ अ फिल्म अमाउंटेड ₹6500, यानी कि एक ऑन फर्स्ट नाइट यानी पहली रात को जब किसी फिल्म का शो लगा तो उसमें जो कलेक्शन हुआ वो 6500 का हुआ, एंड शोड अ ड्रॉप ऑफ ₹110 एवरी सक्सीडिंग नाइट, और हर अगले दिन 110 रुपए का ड्रॉप हुआ, यानी कि पहले दिन अगर 6500 मिले थे तो अगले दिन उससे 110 रुपए कम कलेक्ट हुए, उसके अगले दिन और 110 कम कलेक्ट हुए, उसके अगले दिन एक और 110 कम कलेक्ट हुआ, राइट। इफ द ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ऑफ द शो आर ₹1000, यानी कि अगर शो को ऑपरेट करने का जो खर्चा है वो 1000 है, तो हमें ये बताना है, क्या बताना है, पर डे का खर्चा 1000 है। तो फाइंड ऑन विच नाइट द शो सीजेस टू बी प्रॉफिटेबल, तो किस दिन तक हमारा जो शो होगा
वो प्रॉफिट में जाएगा, और इसका मतलब हमें एक तरीके से ये भी पता चल जाएगा कि अब हमें शो को बंद करना है क्योंकि वो लॉस में जा रहा है, राइट। तो हमें दिया हुआ है कि पहली नाइट पर हमारा जो कलेक्शन है वो 6500 है, इट मीन फर्स्ट टर्म कितना हो गया 6500। हर अगले दिन 110 रुपए का ड्रॉप हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब डी की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, माइनस का 110। अब हमें ये बताना है कि किस दिन हमारा जो शो है वो प्रॉफिटेबल, यानी कि जिस दिन तक अगर हमारा कलेक्शन 6500 से घटते 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 1000 तक जाएगा तब तक हम शो को चलाएंगे, उसके बाद शो को बंद कर देंगे। तो द शो विल सीज टू बी प्रॉफिटेबल ऑन द नाइट व्हेन रिसीव्ड्स आर जस्ट ₹1000, राइट। अब ये होगा कब, हमने मान लिया कि ये किस दिन होगा, दिस विल हैपन ऑन nth नाइट, ये हमारा nth नाइट पे होगा, यानी कि nth टर्म अब हम कैलकुलेट करेंगे तो an का फॉर्मूला लगाया हमने a + n - 1d, an कितना हो गया हमारा 1000, क्योंकि nth दिन पर हमारे 1000 कलेक्शन होगा। a फर्स्ट टर्म हमें दिया 6500, n - 1 एज इट इज रहा, d की वैल्यू हमने लगा दी -110। यहां से हमने कैलकुलेट जब करा इसको सिंप्लीफाई करके तो n की वैल्यू आ गई 51, यानी कि 51वें दिन 51st डे क्या होगा, हमारा कलेक्शन जो होगा वो 1000 होगा और उसके बाद और रिड्यूस होगा -110, यानी कि अगले दिन से हम शो को बंद कर देंगे। तो इट मींस शो विल सीज टू बी प्रॉफिटेबल ऑन 51st नाइट। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने शो को पता कर सकते हैं कि किस दिन तक ये प्रॉफिटेबल रहेगा, राइट। तो बाकी हम इसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।